17th lecture, and in this lecture we will learn about inheritance. So, in this session, there are a few topics which we are going to be discussed. First one is inheritance. That means what is the purpose of inheritance, how we will achieve this concept of OOP in C++, and what are the different types of inheritance. That means single, multiple, multi-level, hierarchical, and hybrid. So first of all, we will see what is inheritance. Inheritance is nothing but a reusability feature of OOP concepts. That means reusability यानी आप एक बार लिख के उसको मल्टीपल टाइम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो कोई एक प्रोग्रामर ने कोई क्लास बनाया है तो दूसरा प्रोग्रामर उस क्लास को सिर्फ रेफर रीयूज करेगा, वापस से वो क्लास को लिखेगा नहीं. मीन्स C++ strongly supports the concept of reusability. Once a class has been written and tested, it can be adopted by the another programmers that I have already told you. This is basically created by defining the new classes, reusing the properties of existing classes. That means existing classes बने हुए हैं, उसकी हेल्प से आप दूसरे नए क्लासेस बना रहे हैं. ठीक है. कैसे वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे. This mechanism of deriving a new class from an old one is called inheritance. So, to derive a class from the another class is the main purpose of inheritance. This is also often referred as is-a relationship. Means because very object of the class being defined is also an object of inherited class. वो आपको जब एक्चुअल प्रैक्टिकल करोगे तब ये इज अ रिलेशनशिप ज्यादा पता चलेगा. The old class is called base class, जिससे आप डिराइव कर रहे हो. That is known as base class, यानी सुपर क्लास को भी कह सकते हो. And the new one is called as derived class. So how to achieve this idea? And the idea is deriving a class from the another class. That is nothing but an inheritance. So how to define a derived classes, yani how to create a new derived classes. Derived class is specified by defining its relationship with the base class in addition to its own details. यानी base class की तो property है ही. Base class में जितने डेटा मेंबर्स और फंक्शंस आपने बनाए हैं वो तो डिराइव्ड क्लास को मिलेंगे ही, साथ में डिराइव्ड क्लास के खुद के एट्रीब्यूट्स और डेटा मेंबर और फंक्शंस भी है. The general syntax for defining a derived class is like this. Here, the class name. This class is derived class. यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे वो derived class होगा, क्योंकि आपने उसके बाद लिखा है colon access modifier. It can be a private, public or protected. Okay. So after access modifier base class का नाम दिया है, यानी ये जो derived class बना रहे हो वो किससे derive हो रहा है, यानी उसका parent class कौन सा है, that you need to mention as a base class after the access modifier. Okay, and followed by the curly brackets. Okay, so whatever data member you want to mention with respect to your derived class, that you can write here. Also you can mention the data member functions also. The colon indicates that the derived class is derived from the base class that I have already told you. The access specifier or the visibility mode is optional, यानी access modifier जो है private, public, okay, वो optional है. If present, may be public, private or protected. By default, it is a private. And visibility mode describes the status of derived features. For example, मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया है. क्लास का नाम है x, y and z. ओके, सो क्लास के कुछ मेंबर्स होंगे, यानी डेटा मेंबर्स होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे, वो क्लास x, y, z का है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्लास ABC. मैंने क्लास ABC बनाया है, उसमें फॉलो क्या किया है पीछे, कॉलन पब्लिक x, y, z. यानी ABC के पास खुद के तो डेटा मेंबर और फंक्शंस होंगे ही, प्लस इट इज getting the attributes or data members or functions from the XYZ class also.
here the XYZ is known as base class, superclass, and ABC is known as derived class or else a subclass. Now here you can see the same example, class ABC colon XYZ only. ठीक है, यहाँ पे XYZ के आगे एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा है. That means by default the derivation is a type of private. Okay. So in the inheritance, some of the base class data members and member functions are inherited into the derived class. We can add our own data and member functions and thus extend the functionality of the base class. Inheritance, when used to modify and extend the capabilities of the existing classes, becomes a very much powerful tool for incremental program development. यानी जब भी कोई एक प्रोग्रामर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसको जो प्री रिक्विजिट टास्क ऑलरेडी किसी ने करके रखा है वो क्लास के फॉर्म में, ठीक है, तो वो जो प्रोग्रामर है वो क्या करेगा, एक्सिस्टिंग क्लासेस है उसको यूज करके खुद की क्लासेस बनाएगा, यानी रीयूज होगा. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, सेम एग्जांपल आई हैव रेफर्ड हियर. क्लास XYZ, उसके मेंबर्स है क्लास ABC एक्सटेंडेड बाय द पब्लिक XYZ, यानी डिराइव किया किससे किया है, XYZ से किया है. ठीक है, तो पब्लिक लिखा है यानी द पब्लिक मोर विजिबिलिटी, पब्लिक डेटा मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय द डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट्स. यानी XYZ में जितने भी पब्लिक डेटा मेंबर्स है वो वैसे के वैसे आपको ABC क्लास में मिल जाएगी. यानी ABC क्लास में आप कौन से डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हो, XYZ के. और ये क्यों पॉसिबल है, पब्लिक लिखा है, पब्लिक XYZ लिखा है इसलिए. When deriving a class from public base class, public members of the base class become public members of the derived class and the protected members of the base class become the protected members of the derived class. यानी XYZ में जो भी पब्लिक है, जो भी प्राइवेट है, वैसे के वैसे ही आपको ABC में मिल जाएगी, पब्लिक हो, प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो. Base class private members never accessible directly from the derived class. Available है with the help of member function of XYZ. यानी प्राइवेट डेटा मेंबर XYZ के जो है, ठीक है, और आप डिराइव कर रहे हो पब्लिक XYZ, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर से ABC क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो, डिराइव कर रहे हो. ठीक है, तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स है उसके लिए अगर XYZ में मेंबर फंक्शंस वैसे लिखे हैं तो ही ABC में आपको एक्सेसिबल है. The second one is by default a private derivation, यानी प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर से आप डिराइव कर रहे हो ABC क्लास को. ठीक है, so in this, in a private visibility mode, public data members of base class become private in derived class. Okay, when deriving a private base class, यानी private by default से private, no need to mention the private keyword in front of the base class. Okay, public and protected members of the base class become the private members of the derived class. यानी अगर प्राइवेटली आप XYZ क्लास को यूज कर रहे हो एज अ सुपर क्लास और एज अ बेस क्लास फॉर दिस ABC क्लास, तो XYZ के जितने भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स है वो ABC में आपके कैसे हो जाएंगे, प्राइवेट मेंबर्स हो जाएंगे. यूजिंग ओनली मेंबर फंक्शन ऑफ अ डिराइव्ड क्लास, पब्लिक डेटा ऑफ बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड. No member of the base class is accessible to the object of derived class. Base class function is accessed by using the base class object. Okay, so now the next thing is types of inheritance, यानी कैसे आप inherit कर सकते हो particular class को दूसरे class के अंदर. ठीक है, तो मैंने पहले ही आउटलाइन में बताया था कि there are 5 types of inheritance: single, multiple, multi-level, hierarchical and hybrid. So each we will see with the diagram. So this one is known as single inheritance. उसमें कैसे होता है कि one derived class inherits from only one base class. यानी derived class जो है वो एक ही क्लास से derive हो रहा है. ठीक है, एक ही बेस क्लास से derive हो रहा है. The next example is multiple inheritance. इसके अंदर कैसा है कि जो derived class है वो एक से नहीं, मल्टीपल, मोर देन वन क्लासेस से वो डिराइव हो रहा है. यानी बेस क्लास उसके मल्टीपल्स है, डिराइव क्लास एक ही है लेकिन उसके बेस क्लासेस जो है वो मल्टीपल्स है. The next one is multi-level inheritance.
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कैसा है, बेस क्लास से आप एक क्लास को डिराइव कर रहे हो, ठीक है, और वो डिराइव्ड क्लास से वापस से कोई एक क्लास और डिराइव कर रहे हो। ओके, सो दिस लेवल वाइज इनहेरिटेंस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी आप जो डिराइव कर रहे हो, जिससे डिराइव कर रहे हो क्लास, ठीक है, वो जो क्लास है वो खुद किसी और से इनहेरिट हुआ है, वो खुद किसी और से इनहेरिट हुआ है, डिराइव्ड हुआ है। नेक्स्ट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यानी हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो है उसमें जो एक बेस क्लास है वो बहुत सारे डिराइव्ड क्लास में यूज हो रहा है। यानी डिराइव्ड क्लास 1 बेस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, डिराइव्ड क्लास 2 भी बेस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, डिराइव्ड 3 जो है वो भी बेस क्लास से एक्सटेंड कर रहा है। यानी एक ही बेस क्लास है जो मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस में उसको हम डिराइव्ड कर रहे हैं। And the last one is hybrid inheritance. Hybrid inheritance is the combination of hierarchical and multi-level inheritance. Means यहाँ पे हाइब्रिड कैसा है कि हर एक लेवल पे अलग अलग टाइप की इनहेरिटेंस फॉलो की है। जैसे यहाँ पे बेस क्लास से हमने बेस क्लास से 2 क्लास डिराइव किए, डिराइव क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है। तो अभी क्लास 3, क्लास 1 एंड 3 जो है इंडिविजुअली बेस क्लास से डिराइव हुआ है, और क्लास 2 जो है डिराइव क्लास 2 जो डिराइव क्लास 1 और 3 से भी इनहेरिट हुआ है। सो जो पहला वाला जो है वो हायरार्किकल है और दूसरा वाला जो है वो मल्टीपल है, ठीक है। So these are the various types of inheritance, and in this video session we will see two types, single inheritance and multiple inheritance के examples हम देखेंगे। So single inheritance, in this type of inheritance one derived class inherits from only one base class and it is the most simplest form of the inheritance. Multiple, in this type of inheritance a single derived class may inherit from the two or more or many more classes. Hierarchical, in this type of inheritance multiple derived classes inherits from the single base class. एक ही क्लास है जिससे बहुत सारे क्लासेस डिराइव हो रहे हैं। Multi-level, in this type of inheritance the derived class inherits from the class which in turn inherits from some other class. The superclass for one is subclass for the other. Okay, so किसी का सुपर क्लास जो है वो किसी क्लास के लिए सब क्लास भी हो सकता है। And the last one is hybrid inheritance. It is also known as virtual inheritance and it is a combination of hierarchical and multi-level inheritance. So here is the example of single inheritance. Okay, here you can see this. What I have done, I have created one class of name worker with two data members as a private age and name, and one public data member salary, and then two functions get and show. Get क्या करेगा, सभी डेटा मेंबर्स की वैल्यू रीड करेगा, और शो जो है वो क्या करेगा, कंसोल पे डिस्प्ले करेगा। तो देखो यहाँ पे गेट फंक्शन सी इन सी आउट से किया, शो में क्या किया, सभी की वैल्यूज नेम एज सैलरी की प्रिंट की। तो ये हो गया वर्कर क्लास, ठीक है। वर्कर क्लास बनाने तक तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट इज मैनेजर। Okay, manager is also a one type of worker. Okay, so मैनेजर का भी एज होता है, नेम होता है, सैलरी होता है, ठीक है। लेकिन मैनेजर लेवल का के अंडर नंबर ऑफ वर्कर्स जो प्रॉपर्टी है वो वर्कर में नहीं होती है, लेकिन एज अ मैनेजर होता है। तो मैनेजर क्लास में क्या किया है, इंट नाउ NOW नंबर ऑफ वर्कर्स, एंड देन पब्लिक में क्या दिए, दो मेथड्स दिए, गेट एंड शो, ठीक है। यहाँ पर देखो रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है कॉलन पब्लिक वर्कर, यानी क्लास कैसे डिराइव किया हमने, मैनेजर क्लास डिराइव किया वर्कर क्लास से पब्लिकली। ओके, सो इसके दोनों गेट मेथड एंड शो मेथड। गेट और शो में देखो एक नया कंसेप्ट, गेट और शो मेथड जो है मैनेजर में, उसमें आप क्या रीड कर सकते हो, NOW नंबर ऑफ वर्कर्स का जो वैल्यू है वो आप रीड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैनेजर के रिलेटेड जो एज नेम सैलरी है उसको रीड करने के लिए और प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो वर्कर क्लास है उसका गेट और शो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैनेजर के गेट फंक्शन के अंदर गेट फंक्शन कॉल किया, उसके आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा है, उसके आगे वर्कर,
यानी इसको पता चलेगा कि ये जो गेट मेथड है वो कौन किसकी है, बेस क्लास, दैट इज द वर्कर क्लास. सो दिस वे यू कैन कॉल द functions, member functions of the base class. Okay, same way in a show function of a manager, worker colon colon show. तो क्या करेगा वो शो फंक्शन, जो मेंबर फंक्शन क्या है वो कॉल होगा. ओके, और उसके साथ वो जो मैनेजर फंक्शन है, मैनेजर का जो शो फंक्शन है, उसमें जो सी आउट लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स अंडर मी, वो भी उसके साथ काउंटेड हो जाएगा. ठीक है, तो दिस वे व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव क्रिएटेड वन वर्कर क्लास, we have created one manager class, but the manager class is derived from the worker class. Okay, so how to call the methods of base class, that you have seen with the help of class name colon colon yani scope resolution operator and the function name. So here you can see this manager m यानी किसका ऑब्जेक्ट बनाया, मैनेजर क्लास m का. m डॉट गेट m डॉट शो, m डॉट गेट में जैसे जाएगा तो पहले वर्कर का जो गेट फंक्शन है उसको कॉल करके एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद मैनेजर का जो गेट फंक्शन है उसकी जो सी इन सी आउट स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करेंगे. सेम वे फॉर द शो फंक्शन ऑफ द मैनेजर विद द हेल्प ऑफ द शो फंक्शन ऑफ द वर्कर. ओके, सो हियर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, सी आउट नंबर ऑफ वर्कर्स m डॉट सैलरी. ठीक है, m डॉट सैलरी, तो सैलरी डेटा मेंबर इज एक्सेसिबल, वो सैलरी प्रिंट करेगा. इसका आउटपुट मैं आपको रन करके दिखाती हूँ. सैलरी डेटा मेंबर इज एक्सेसिबल बिकॉज मैनेजर क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्कर क्लास यूजिंग पब्लिक मॉडिफायर. ठीक है, तो यहाँ पे मेंबर मैनेजर क्लास है, उसके पास जो वर्कर का सैलरी डेटा मेंबर है एज अ पब्लिक, उसको ही आप प्रेफर कर सकते हो. एज और नेम को रेफर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर दी प्राइवेट डेटा मेंबर्स. ओके, so I will run this program. Look at this. This is a class worker. इसके दोनों functions हैं, manager, the colon public worker. एक नया डेटा मेंबर है मैनेजर का. सो मैनेजर के पास डेटा मेंबर्स कितने हुए, नेम, एज, सैलरी एंड नंबर ऑफ वर्कर्स. नाउ ओके, लेकिन वर्कर के पास कितने हैं, नेम, एज एंड सैलरी. ओके, मेन में देखो ये सब किया. ओके, इसको रन then done. एंटर दिया, नाम दिया ABC, एज दिया 35, उसकी सैलरी 10,000. ओके, so these three data members have been derived from worker class. okay, and number of workers जो है वो किसने पूछा गया है, with the help of get function of a manager class. So under me there are 23 workers. So this is the output. okay, तो यहाँ पे लास्ट टाइम में नंबर ऑफ वर्कर्स 10,000 दिया है, तो कैसे एक्सेसिबल है, क्योंकि सैलरी डेटा मेंबर है वर्कर क्लास का, वो एज अ पब्लिक उसमें डिफाइन किया है, और पब्लिकली हम उसको वो क्लास को हम मैनेजर क्लास में एज अ बेस क्लास ले रहे हैं, तभी इसको एक्सेसिबल है. अभी यहाँ पर ये जो प्राइवेट लिखा है मैनेजर क्लास, ये पब्लिक है, उसको हम प्राइवेट करते हैं. अभी देखो क्या हो, प्राइवेट का मतलब क्या है, अगर प्राइवेट से आप कोई भी क्लास को डिराइव कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर से, तो उसके जितने भी प्राइवेट और पब्लिक डेटा मेंबर्स है उसके अंदर प्राइवेट हो जाएंगे. तो यहाँ पे जब मैनेजर में NOW तो है ही प्राइवेट, बाकी के 3 भी ऐसा प्राइवेट ही आएंगे. तो क्या आप यहाँ पर m डॉट सैलरी लिख पाएंगे, दैट वी नीड टू चेक. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, into worker salary is inaccessible because it's a private. किसके लिए प्राइवेट है, मैनेजर के क्लास के अंदर प्राइवेट है. ओके, फाइन. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस. ओके, फाइन. सो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप इज मल्टीपल इनहेरिटेंस. और मल्टीपल में क्या था,
a class can inherit the attributes of two or more classes. यानी एक ही क्लास है, वो दो क्लास में से बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेंबर फंक्शंस को यूज कर रहे हैं. This mechanism is known as multiple inheritance. Multiple inheritance allows us to combine the features of several existing classes as a starting point of deriving new classes. It is like the child inheriting the parent feature, physical feature of a one parent and intelligence feature of another parent. Here you can see the syntax. पहला क्लास बनाया बेस 1 बेस 2, ठीक है. उन दोनों की खुद की डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन की स्टेटमेंट बॉडी है, ठीक है. उसके बाद जो क्लास डिराइव्ड है कॉलन विजिबिलिटी बेस 1 कॉमा विजिबिलिटी बेस 2. अगर एक क्लास डिराइव हो रहा है मल्टीपल से तो वो कैसे लिखेंगे? क्लास 1 क्लास 2, उसको आप कॉमा से सेपरेट करोगे, ठीक है. Here is the example. Look at this. What I have done created one class m with a protected data member n and उसकी वैल्यू रीड करने के लिए get m फंक्शन बनाया है और उसका मैंने स्टेटमेंट बॉडी लिखा. सेम वे व्हाट आई हैव डन क्लास n, उसका प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर n है और पब्लिक में एक get अंडरस्कोर n उसकी वैल्यू रीड करने का फंक्शन बनाया है, ठीक है. नाउ द सी क्लास p. Class P is derived from public M as well as public N, तो उसको कॉमा से सेपरेट किया है, ठीक है. और P के खुद की कोई डेटा मेंबर नहीं है, उसमें सिर्फ एक डिस्प्ले फंक्शन लिखा है, ठीक है. डिस्प्ले फंक्शन जो है क्लास P का वो कैसे लिखेंगे हम? उसके अंदर हमने M एंड N की दोनों की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई. रीड कैसे होगी? दोनों के फंक्शंस कॉल करके M एंड N के जो फंक्शंस है get N get M, उससे हम m एंड n की वैल्यू रीड कराएंगे जो यहाँ पर हमें अवेलेबल होगी. उसके बाद m इंटू n, तो जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो प्रिंट होगा विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले फंक्शन ऑफ क्लास p. सो हियर यू कैन सी दिस क्लास p के का ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल p डॉट गेट n, तो क्या करेगा? n की वैल्यू रीड करेगा. p डॉट गेट n, तो n का वैल्यू रीड करेगा. तो गेट m एंड n जो है वो हमने क्लास p में नहीं लिखा है, ठीक है. तो वो दोनों फंक्शंस कहाँ से आए? वो दोनों फंक्शन पब्लिक m और पब्लिक n से जो हमने एज अ सुपर क्लास लिया है, बेस क्लास लिया है, उसके फंक्शंस हम रेफर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट. ओके, एंड देन आई हैव कॉल्ड डिस्प्ले फंक्शन ऑफ क्लास p एंड सी द आउटपुट. एंटर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 12, n की 2 डाली और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो यहाँ पे एज ए 24 एज ए आउटपुट डिस्प्ले होगा, ठीक है. तो इसको हम रन करके देखते हैं. Here you can see this. This is the class M. Okay. This is the class N. And this is class P. Public M, comma public N. आप इसको पब्लिक m लेना चाहते हो, इसको प्राइवेट n करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है. इसको सिंपली रिमूव कर दो, ठीक है. और p के डिस्प्ले फंक्शन में m एंड n अवेलेबल है, पब्लिकली यूज किए हैं, ठीक है. तो प्रोटेक्टेड विल बी रिमेन एज अ प्रोटेक्टेड इन अ क्लास p. सो इन अ क्लास p डिस्प्ले फंक्शन m एंड n प्रिंट किए और m इंटू n की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करवाई, ठीक है. और p क्लास में m एंड n कैसे मिले हमको? यहाँ पे यूज करने को m एंड n दोनों डिफरेंट क्लास से है. m इज फ्रॉम द m क्लास, n इज फ्रॉम द n क्लास. लेकिन हमने विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर getting the data members from the different classes into a single class. Okay, that is known as derived class. And multiple classes जहाँ से आप derive कर रहे हो, they all are known as the base class. And is ये main. जैसे ही p dot get m होगा तो क्या करेगा वो? p के पास m का राइट्स है, m की मेथड्स को कॉल करने का राइट्स है, तो वो यहाँ पे चला जाएगा, तो m का रेट गेट n होगा तो p के पास
get n is the member function of n class, ठीक है. So p dot get n लिखोगे तो p के पास राइट्स कैसे है, p के पास परमिशन कैसे है कि ये फंक्शन वो कॉल कर सकता है with the help of this mechanism. And then p dot display is p का खुद का ही फंक्शन है, ठीक है. So compile, will and execute. यहाँ पे देखें 23 into 3, so the answer is 69. क्लियर. तो पता चला आपको क्या हो रहा है इसके अंदर, यानी class P is getting properties from two classes M and N. Okay. So this is the example of multiple inheritance.